Hi investment traders, welcome back to the channel. ये second part है of the stocks which have bottomed out, which have corrected and they look ready. उनके results अभी आए हैं. ऐसा लगता है कि results the stock are looking really promising at this point of time और चलने की तैयारी में है. जो स्टॉक मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. खासतौर से जो पहला स्टॉक है वो मुझे देखने में मतलब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ये एक राकेश झुनझुनवाला जी का बहुत फेवरेट स्टॉक भी था. तो हियर मी आउट, हियर माय अंडरस्टैंडिंग. आप अपने इनपुट्स भी डाल सकते हैं और अपने इनपुट डाल के एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो हियर वी गो एंड लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू स्टॉक्स. तीसरा स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है which comes into one of my favorite space, which is CRISIL Limited. CRISIL Limited basically is a rating. It's a globally diversified analytical company providing ratings, research, risk, and policy advisory services. Honestly, if I speak, I love this kind of companies, right? Because they don't have to manufacture anything. They don't need skilled labors. They don't need big factory spaces. They don't need raw material. They don't need to sell their product. It's a compulsory space. If a company has to get ratings, they have to come to CRISIL, right? Or companies like this. And CRISIL has a market cap of about 39,564. I don't know how many of you remember CRISIL. मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, बहुत लोअर वैल्यूज पे दिया था क्रिसिल आप लोगों को जब दिया था यहाँ दिया था कहीं यहाँ पे जब ये एक्यूमुलेट हो रहा था और अबाउट 4,600 वहां से जाके इसने ऑलमोस्ट 7,000 का हाई लगाया है, राइट? आप देख सकते हो कितने समय में लगाया. यहाँ पे कहीं दिया था नवंबर 2023 में दिया था, नवंबर से जाके और ये हाई इसने लगाया जाके 1 जनवरी 2025 को, राइट? तो ऑलमोस्ट लाइक सवा साल, क्योंकि पूरा 24 और 2 महीने उधर और 1 महीना इधर, तो 3 सवा साल 1.25 years में इसने आपको ऑलमोस्ट लाइक 80% का रिटर्न दिया है. Which mutual fund? Where do you get this kind of result? And again, आज इसमें फिर से वॉल्यूम्स आए हैं, अर्निंग्स आई हैं और the surprise is 11.92%. This looks very promising to me, and again, a great opportunity to take an entry in the stock anywhere. I would not like to give you a range. You can do your risk management, trade management, but anywhere you can accumulate. अगर नीचे जाता है तो जितना नीचे मिलेगा, like it's discount that you're getting on a stock, which is not possible until market corrects, or this is a healthy correction, right? ये आपको allow करता है to deploy your capital at the lower level. So CRISIL is what I'm going to keep on my radar. And quickly इसके fundamentals देखते हैं. देखो ROC कितनी बढ़िया, ROE कितनी बढ़िया है और P is about 57.9. Company has good return on equity and company has been maintaining healthy dividend payout, 50% का dividend, and debtor days have improved. अब जल्दी से इनकी सेल्स देखते हैं तो सेल्स बहुत ज्यादा नहीं है, इंप्रूव हुई है, बट आप देखो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 27% से बढ़ के 31%. पहले तो 27%, anything which is above 10% operating profit margins are very good. These are 27 से बढ़ के 31% पे आ गए, which is again really good. अगर आप नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं वो भी ऊपर गए हैं और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो 13 साल में इनकी सेल्स जो है 3 टाइम्स से ज्यादा 3 टाइम्स के आसपास हो गई है और इनके प्रॉफिट भी रफली अबाउट 3 टाइम्स है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टैग्नेंट एट अबाउट 30%, 28% और सो. ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में डेफिनेटली देयर इज अ ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट हैज आल्सो ग्रोन क्वाइट ड्रास्टिकली. और अगर हम बात करते हैं बोरोइंग्स, अभी रिसेंटली इनकी बोरोइंग्स थोड़ी इंप्रूव हुई है बट रिजर्व्स हैव आल्सो गॉन अप. They do have cash from operating activity and they are generating net cash flow. Debtor days की बात करें तो थोड़े से कम हुए, 80 से घट के 62 पे आए. और अगर हम बात करते हैं promoters holding almost constant है, there is no dilution. FI's holding is constant, DI's holding is constant and public holding is also is little bit reduced. What I want to say, अगर आप सर्च करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो तो आप देखेंगे CRISIL has been होल्डिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. होल्डिंग वैल्यूज 2000 करोड़ इनके पास है आज तक और आप देख लो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है इनका वैल्यू. सो क्रिसिल इज वन ऑफ द स्टॉक ही पिक्ड अप एट अ वेरी लो वैल्यू. आई जस्ट वांट टू सर्च कि किस वैल्यू पे इन्होंने पिक किया था. So, in fact, if you know this story, that in 2005, Rakesh Jhunjhunwala sold his CRISIL share worth 27 crore to buy a flat.
and he said that today the flat is probably 70 crores, but the CRISIL share he had sold are valued more than 700 crore, right? So this is the story that we have, and he picked it at very very low value. आप सोचो 2005 में भी उनके पास ये स्टॉक था क्रिसिल। विल मेक इट मंथली, और जब उन्होंने बेचा है तब तब इसकी वैल्यू जो थी यहाँ पे कहीं पे इन्होंने बेचा है, राइट? 79 यहाँ पे कहीं पे उन्होंने बेचा है स्टॉक को, और आप उसके बाद तो इसको देख लीजिए जरा किस हिसाब से स्पीड से चला है, राइट? तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग वेल्थ, राइट? लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि ये राइट टाइम है इसमें एंट्री लेने का, दिस स्टॉक नेम इज स्नाइडर। द स्टॉक नेम इज स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 15,000 प्लस करोड़ की कंपनी है। ROC is 37, ROE is about 126, and this company works into engaged in business of manufacturing, designing, building, and servicing technologically advanced products and system for electricity network. All right, the product portfolio of the company includes transformers, power transformers, switchgears, medium voltage switchgear, protection relays, differential relays, electricity, etc., etc. Right? अगर quick रिव्यू करेंगे कंपनी का, द कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 138% CAGR। सेल्स को देखते हैं तो सेल्स में इंक्रीमेंट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% से बढ़ के 16% पे आ गया। EPS में पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट लगातार ग्रो कर रहा है। ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो सेल्स डेफिनेटली हैज बिकम डबल इन लास्ट 10-11 ईयर्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3% से बढ़ के 15% पे आ गया है। EPS की बात करें तो नेगेटिव होने के बाद अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। प्रॉफिट की बात करें तो काफी समय नेगेटिव रहने के बाद ये स्टॉक फॉर द लास्ट 4 इयर्स इज इन पॉजिटिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोइंग। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 352 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स थोड़ी सी इनकी ज्यादा है, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग रहेगा। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स आर देयर ऑन ईयर बेसिस। नेट कैश फ्लो है इनके पास पॉजिटिव, और डेटा डेज की बात करें तो 108 पे आ गया है। और अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर्स आर नॉट बजिंग फ्रॉम द होल्डिंग अबाउट 75%। FIS holding is about 2.98%, DIS holding is about 3.17%, and public holding थोड़ा सा रिड्यूस हुई है। सो अब बात करते हैं स्नाइडर के प्राइस की। तो सामने आपके चार्ट लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इनकी अर्निंग्स भी आज आई है या आने वाली है, राइट? आई थिंक अभी आने वाली है आज शाम को। तो पहले वॉल्यूम्स आ चुके हैं ऑन 29 जनवरी को, अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। जहां से इसने रिवर्सल लिया वहीं पे आपकी एंट्री रहेगी 707 के ऊपर, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 585 का। तो थोड़ा ध्यान करिएगा अगर बहुत मैसिव गैप खुलता है या ब्रेक करता है, क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, मुझे इनमें सबसे अच्छे फंडामेंटल्स लगते हैं क्रिसिल के, इन चारों स्टॉक्स में जो मैंने आपके साथ कल और आज में स्टडी किए। तो आप इसमें 707 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट टुवर्ड्स 800, 850, 900, 950, एंड फाइनली अगर ये 975 या 980 को क्रॉस करता है तो 1000 प्लस के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं, राइट? तो स्नाइडर मेरा फोर्थ स्टॉक है। तो दो स्टॉक मैंने आपको दिए थे, सबसे पहले दिया था आपको टिमकेन, गरवारे हाईटेक, देन आई हैव गिवन यू क्रिसिल, एंड द चौथा स्टॉक है स्नाइडर। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बहुत लंबा ना लगे, देखने में बहुत हेवी ना लगे, और सेकेंड पार्ट को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। एंड होप you should be able to pick some good stock at the lower valuation and without getting hassle, without feeling कि अब मार्केट क्या होगा। चलेगा, मार्केट चलेगा मैक्सिमम आफ्टर February, it will just start running। I think February मार्च के बाद कहीं ना कहीं आके मार्केट डेफिनेटली रुकेगा और आपको मूव मिलेंगे। तो जब मूव जिस स्पीड से गिरता है उससे हायर स्पीड से भागेगा। आप कभी भी देखोगे अगर मिड कैप स्मॉल कैप गिरते हैं तो गिरते भी स्पीड से है और भागते भी स्पीड से। तो इसलिए चिंता मत करना, परेशान मत होना, you'll all be fine, just hold tight and do not worry when the market falls, right? अच्छा समझदार व्यक्ति उस समय अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है जब मार्केट गिरने लगता है। With this, I'll be signing off. Take care and stay tuned for more such updates, and keep learning about stock market, because जब market tough होते हैं, जब market गिर रहे होते हैं, it's important for us to really enhance our understanding about market and keep investing small quantity and lower level पे जितना आप लगा सकते हो
मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारा कैपिटल लगा दो या घर बेच के लगा दो, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ, बट अगर आप 2-4 महीने 3 महीने से बाहर खड़े हो मार्केट को, आप एंट्री ले सकते हो एट द लोअर लेवल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।